अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, खुशामदीद। सेकेंड होम इंडिया के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम हिंदुस्तानियों की ज़िंदगियों में सिनेमा ने हमेशा से एक अहम मकाम रखा है। आज हम इस एपिसोड में आपके साथ कुछ ऐसे लोगों को मुलाकात करवाना चाह रहे हैं जिन्होंने कुवैत में रहते हुए एक फ़िल्म बनाई है, अपने पैशन को, अपने काम को एक साथ लेकर आए हैं। और मैं आपकी मुलाकात कराना चाह रही हूँ इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कुछ आर्टिस्ट से। फिल्म का नाम है पेलिकता चित्रम, एक तेलुगु मूवी है जो 40 मिनट की बनी थी और पिछले साल ही रिलीज़ हुई थी। तो आइए इन सब से मुलाकात करें। हम बात कर रहे हैं इस मूवी के डायरेक्टर के साथ, मिस्टर गिरी प्रसाद। आइए उनसे मिलकर गुफ्तगू करें। वेलकम टू द शो मिस्टर गिरी प्रसाद। थैंक यू सो मच। हम जानना चाहेंगे कि इस मूवी को बनाने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या रही थी? It's actually my profession at the same time also passion. So lot of things including inside. Yeah. आपके हिसाब से इस मूवी को बनाते हुए हाईलाइट क्या रहा था? What was the highlight of this movie for you? Actually, it's the highlights of the movie. It's a teamwork. Completely people who is supporting me. This is the great thing about me. So, the filmmaking struggle and work, whatever it's going, it's without teamwork, it's not can do. So that is very good highlight for me and great thing for me. And I have good team. Yeah. Are you working on any new projects these days? Yeah, actually lot of projects we are working right now. Soon we are going to the shoot in the production. It's right now in pre-production stage. Soon we will reveal the projects we are doing, and lot of projects in under post-production and etc. So soonly we reveal some. ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका शौक और आपका रिस्क एक जगह से आ रहा है। कल रात हमने ख्वाब में आइंदा को चलते देखा, इश्क और रिस्क को एक साथ घर से निकलते देखा। अच्छा, ये बताइए कि आप कुवैत में कितने सालों से हैं? क्या आपको कुवैत में रहना पसंद है? Mostly 17 years in Kuwait. I can say one word in Hindi. It's Janmabhoomi is in India. I can say it's my Karmabhoomi is Kuwait. So like just born in India only, but my growth and everything in Kuwait. So I love Kuwait and people and friends and lot of relations myself in Kuwait. So it's actually it's great country. अच्छा, इस मूवी को बनाने के दौरान आपको बड़े सारे लाइसेंसेस और अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़े होंगे कोई गवर्नमेंट से, तो वो किस तरह रहा? क्या आपको सहूलत थी ये सब करने के लिए? Yeah, of course. It's a major part of the film. We shoot in the public places and everywhere. We get the licenses and everything from the Kuwait government. Wherever we go, the people are very cooperative. It's very helpful. But I feel first when I thought about the film, will be easy or I don't know. It's I think very difficult. But when I got the permissions, is everything. But if you do film making is very easy in Kuwait, and if you are doing perfect. So I got very good permissions and everything I do legally. So it's very helpful, and I hope I do more better and better in future. Thank you so much. It was such a pleasure talking to you. Thank you, Amlaji. Thank you so much. Allow me to introduce you to the producer of this film. He's an enthusiastic filmmaker and he's given this film a chance in Kuwait. Let's have a few words with him. Welcome to our show. Tell us a little about yourself. I'm Mashal Salim. I'm a film director and I finished from Cairo High Institute for Cinema. And now I'm making master for same film director. I see. Our viewers would like to know, how did you get involved with this Indian filmmaking episode? First time when just my best friend Jerry, and he come and he give me the thing about
this film. I'm very happy, and I push him for this one. I tell him this is the first film Indian they make in Kuwait. Okay, and he need me also with him to supply to make this film as like a producer, like and for this film. Then we start and we push and we finish. Alhamdulillah, we finish this film, and all people they happy for this film. Alhamdulillah. I've heard such great things about you from Giri Prasad and Vijay Bhaskar, both the director and the co-director. I've also heard that there was a premiere for this movie in Discovery Mall, right? I'm not. This is premiere. I think this is the festival. They like festival for Jerry and we, the friend for Jerry also all. I'm happy, very, very happy for this one. And when I go there, like I tell you, like festival, like carnival, we making for this movie. And I hope to be another step for this another movie, a new movie. And also I know maybe Jerry have some project and as soon as possible they make it. Inshallah, I hope they do. Thank you so much for your support in this, and I wish you the very best for future filmmakers. What do you think is the scope of future filmmakers in Kuwait? You know, before we are in Kuwait, we are the beginning for who making the film making in Kuwait. We have the first movie is Basya Bahar for film director Khalid Siddiq. Okay. After that, we making some movie like Ars Zain, like other movie also, and we stop. Before maybe I think before 3 years they start again to make a movie, and filmmaker they start again to make it in Kuwait. I think this is the beginning again before the 16 or 17. They will start now again, and I hope it will be big. Same the Cairo, same the Indian, and same with the Hollywood, inshallah. Great aspirations. Thank you so much for being with us. It was a pleasure talking to you. Pleasure to do. Thank you very much. अब हम बात करेंगे इस फिल्म की आर्टिस्ट से, मिस सलमा खान। वेलकम टू द शो मिस सलमा खान। थैंक यू सो मच। मुझे बताइए कि ये क्या मूवी आपकी पहली मूवी रही है? जी बिल्कुल, ये मेरी पहली मूवी थी एंड आई हैव अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस इन दिस। नए लोग थे, नई जगह थी एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। जी तो इस मूवी में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ यादगार लम्हात बन जाते हैं मूवी बनाते हुए, तो इस मूवी के लिए आपके यादगार लम्हे हमारे साथ शेयर करें। वेल, नॉट बीइंग बोस्टफुल बट देन यस, आई लाइक माई ओन सीन एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द सीन वाज एक रियल हार्ट को हाथ में लेना था, रियल हार्ट। सो स्टार्टिंग में आई वाज रियली अनकंफर्टेबल बिकॉज इट्स अ हार्ट, सो ऑफ कोर्स कोई भी अनकंफर्टेबल होता है। हार्ट मतलब दिल, सही दिल। You're right, a real heart, a sacha wala dil, It was a goat's heart, and I was really so, I was not comfortable because it's a heart or something, heart ho raha hai and all that. So I was like, okay, chalo kar lete. So I was getting used to it as time was passing by, so I was comfortable later on. But I really like my own scene, to be honest. अच्छा, you have to tell us a dialogue from your movie. Dialogue, okay. My first dialogue was "Ni parenti," which means "What's your name?" And the guy has his own dialogues, so he replies back asking "Yenduku" and all that, which means why. So my dialogue used to be like "Taluchko nenduku, pilchko nenduku." Abhi iska matlab mujhe mat puch because I don't know. Yeah, that's it. This is only the dialogues I remember. अच्छा, हमें ये बताइए कि आप कब से कुवैत में हैं और कुवैत में आपको रहना पसंद है? जी बिल्कुल पसंद है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ कुवैत बॉर्न। मैं कुवैत में पैदा हुई हूँ एंड आई कुवैत में पैदा होना मतलब द होल चाइल्डहुड, माई टीनेज लाइफ, एंड आई एम रियली हैविंग अ वेरी गुड टाइम। दिस इज लाइक माई सेकेंड हाउस,
like being here for like 18 years now, idhar hi paida hona, a good teenage life. I really enjoy being in Kuwait. Yeah. अगर हमारे व्यूअर्स को आपको कोई एक मैसेज देना हो तो वो क्या होगा? Regarding Kuwait? रिगार्डिंग एनीथिंग, आप कुवैत में रहे, ये मूवी की जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको और अगर मौके मिले तो क्या आप काम करेंगी? जी बिल्कुल करूँगी. If I get such a platform and such a good director like Mr. Giri, who has supported me, who believed that I could act, like who actually believed in me, normal person can act, who gave me the support, the courage. Yeah, I would really like to do. And मैं ये भी चाहती हूँ कि ज़िंदगी मुझे मुख्तलिफ रोल्स करने का मौका दे एंड अपॉर्चुनिटी दे आगे जाके. इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आपको ये मौके ज़रूर मिले, आप खूब कामयाब हों, और हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया सलमा खान. Thank you so much for having us. तो मैं आपकी मुलाकात एक और आर्टिस्ट से कराना चाहूँगी. इनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन और इन्होंने भी इस मूवी में एक रोल किया है. आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करें. वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये मूवी में जो आपने काम किया, ये अपने शौक़ की तरह किया या ये आपका काम है फुल टाइम? नहीं, ये तो फुल टाइम तो नहीं है. मैं KOC में काम करता हूँ. ये जो है एक पार्ट टाइम जैसा काम कर रहा हूँ. पार्ट टाइम नहीं, ये दिल की एक शौक़ थी कि मूवी में एक्ट करना बचपन से. अल्हम्दुलिल्लाह ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, मैं इस फिल्म में एक्ट किया. अच्छा, इस मूवी के बारे में आपको किस तरह पता चला, कैसे पता चला कि अच्छा ये एक रोल है और इसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? जी, मैं ये जो सोशल नेटवर्क है फेसबुक में एक ऐड दिए थे ये लोग, हमारे जो डायरेक्टर हैं, उस ऐड देखकर मैं ये लोग को कॉल किया. कॉल करने के बाद में फिर ऑडिशंस लिए. ऑडिशन लेने के बाद में पहला टेस्ट में ही ये लोग सेलेक्ट कर लिए मुझे, और पहला पर्सन हूँ कि मैं ये मूवी में सेलेक्ट होने के लिए. और मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ मेरे डायरेक्टर को, जो है मेरे ऊपर जो है बहुत कॉन्फिडेंस से थे वो. फिल्म में भी मैं उसी तरह अदा किया रोल. इसमें तो बहुत बड़ा रोल तो नहीं था, लेकिन जो भी जितना भी रोल दिया गया मैं उसमें मैं जो है बहुत इद्दत के साथ में काम किया. हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए कि आपका रोल क्या था. वो एक छोटा सा रोल था जो है हीरोइन को मदद करने का, और एक राउडी टाइप में, एक बहुत बड़ा गुंडा और हीरोइन को मदद करना है, उस टाइप का किरदार था. बहुत अच्छा था. अच्छा, कुवैत में आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं तकरीबन जो है 10 साल से रह रहा हूँ. जी. आपको कुवैत में रहना पसंद है? बहुत पसंद है, और कुवैत जो है मुझे इतना दिया कि, और मुझे मेरे फैमिली को, कि मैं कुवैत से बहुत मेरे दिल से जो है मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ. और कुवैत जो है मेरा सेकंड घर जैसा है. माशाल्लाह. अच्छा, अगर आपको और कोई प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो क्या आप काम करेंगे? जी बेशक ज़रूर काम करूँगा. और जो है ऑलरेडी मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, और इंशाल्लाह हो सकता नेक्स्ट मंथ में वो जो है शॉर्ट फिल्म है, वो भी एक तेलुगु मूवी, भगना प्रेमिकुलु है उसका नाम, स्टार्ट होने वाला. वैसे क्या आपको ये नायाब बात लगती है कि कुवैत से, अपने घर से, देश से इतना दूर हम कुवैत में रह रहे हैं, उसके बावजूद हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल रही है काम करने की, इसके बारे में आपका क्या ख्याल? अपने वतन की तो थोड़ी बहुत नहीं, अपने वतन की तो फीलिंग आती है दिल में, लेकिन कुवैत ऐसा है कि वो उस चीज़ को भुला देता है. और यहाँ का माहौल, यहाँ का ये जो है रहन सहन बहुत अच्छा लगता है मुझे नहीं, बहुत सारे हिंदुस्तानियों को भी अच्छा लगता है. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, हमें बेहद खुशी हुई. इंशाल्लाह खुदा आपको और कामयाबी दे. बेशक, इंशाल्लाह ज़रूर. आइए अब बात करते हैं इस फिल्म के को डायरेक्टर के साथ, मिस्टर विजय भास्कर.
वेलकम टू आवर शो मिस्टर विजय भास्कर। थैंक यू। हम जानना चाहेंगे कि क्या ये मूवी आपका काम है या आपका शौक है? फ़िलहाल शौक बोलना पड़ेगा, शायद ये शौक ही मेरा काम भी होता तो अच्छा है, बट मैं काम करता हूँ इधर एक बड़ा कंपनी में, रिटेल कंपनी में। आई वर्क इन IT। सो जो टाइम बचता है मुझे, सो वट एवर टाइम आई कैन टेक आउट इन माई वीकेंड्स ऑल्सो, आई चेज माई पैशन ऑफ फिल्म मेकिंग, एंड ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना, आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। या अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस आपका जो रहा आपकी क्रू के साथ, आपको सपोर्ट मिला, आपको वर यू कॉन्फिडेंट कि हाँ ये हमारी कास्ट कर सकेगी? वेल, इट वाज फर्स्ट फॉर एवरी वन ऑफ अस। हम सब के लिए ये पहली शॉर्ट फिल्म थी। तो इसके पहले भी मुझे लगता है कुवैत में कोई इंडियन फिल्म बनाई नहीं थी, मतलब इतना लंबा। सो इट्स लाइक इट वाज एक्साइटिंग, इट वाज न्यू एवरी डे, एंड एज अ को डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, लाइक मुझे बहुत लोगों को बोलना पड़ता है, संभालना पड़ता है। सो इट वाज लाइक इट वाज फन, इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। सो बहुत मज़ा आया, एंड फॉर्चुनेटली आई हैव आवर क्रू वाज वेरी गुड, वी हैव अ वंडरफुल डायरेक्टर, एंड production support was very good. So yeah, it was great, we had great time, it was fun. अच्छा, मूवी बनाते हुए अक्सर ऐसा होता है कि कुछ यादगार लम्हे हमेशा बन जाते हैं। आपके हिसाब से इस मूवी के यादगार लम्हे क्या होंगे? The whole project was यादगार actually. But the first day of shoot, जो हम इकट्ठा हो गए, it was an outdoor shoot, outdoor सीन है। So it's like टेक्निकली सिर्फ 2-3 लोगों को मालूम है उधर क्या हो रहा है। सो बाकी सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि व्हाट द डायरेक्टर इज गोइंग टू से और व्हाट द कैमरामैन इज गोइंग टू से। सो नोबडी रियली अंडरस्टूड व्हाट वाज गोइंग ऑन, एंड द डायरेक्टर एंड माई सेल्फ एंड द कैमरामैन यूज्ड टू टॉक एंड यूज्ड टू डिस्कस, वी यूज्ड टू पुट द शॉट एंड ऑल। सो वी एक्चुअली हैड टू काइंड ऑफ मैनेज ऑल द पीपल। वी नो वी हैव एन आइडिया ऑफ, थोड़ा बहुत आइडिया था हमें कैसे करना करके। सो उस आइडिया को लेके उस दिन पूरा दिन शूटिंग को संभालना, एंड बाय नून आई गेस तो थोड़ा थोड़ा लोगों को समझ में आने लगा। एंड द टफेस्ट पार्ट तभी शुरू हुआ कि लोगों से एक्सप्रेशन निकलवाना, लाइक इट वाज वेरी गुड। द होल फर्स्ट शेड्यूल वाज रियली मेमोरेबल। उसके बाद आदत हो गया, पीपल हु आर इन इट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड, एंड ऑल ऑफ अस स्टार्टेड टू एंजॉय, एंड द शूटिंग वाज वेरी स्मूथ। क्या ये मूवी पूरी कुवैत में शूट की गई थी? यस, पूरी मूवी कुवैत में, हमारा इरादा था कि पूरी मूवी हम कुवैत में ही बनाएं। सो या वी डिड इट, एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म, इट वाज शॉट इन कुवैत। अच्छा, आप और प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं? या ऑफ कोर्स, मन चाहे तो बहुत कुछ करने का इरादा है। फ़िलहाल अपना खाली टाइम में ही कर सकते हैं। तो बीच में ये फिल्म ख़त्म होके कुछ दिन हुआ, वी हैव सम प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, एंड वी आर ऑलरेडी इन प्री प्रोडक्शन स्टेज। सो बहुत ही जल्दी अनाउंस करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू टेक अनाउंस इट इन सोशल मीडिया। फ़िलहाल कास्टिंग की बातें हो रही है। सो आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट विल बी मोर बिग एंड इट विल बी मोर एक्साइटिंग, एंड ऑल ऑफ यू विल लाइक इट मोर दैन द फर्स्ट वन। या हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस मूवी में आप किस तरह इन्वॉल्व हुए? वो थोड़ी एक्चुअली इट्स अ लिटिल बैकग्राउंड इज लिटिल फनी। आई वाज इनिशियली कंसल्टेड फॉर द म्यूजिक पार्ट ऑफ द फिल्म। सो जो म्यूज़िक डायरेक्टर है जिन्होंने फिल्म के लिए करने के लिए बात किया, उन्होंने मुझे कंसल्ट किया, एंड आई वाज ब्रॉट इनटू द प्रोजेक्ट टू सुपरवाइज द बैकग्राउंड स्कोर एंड द म्यूजिक एंड ऑल। बट हालांकि मेरे दिमाग में कुछ और था, बिकॉज आई वाज टोटली पैशनेट अबाउट डायरेक्शन। जो हमारी डायरेक्टर से मेरा पहला मुलाकात में, द फर्स्ट 5 minutes ही अंडरस्टूड दैट वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। सो या, सो लाइक दैट वी स्टार्टेड, एंड टिल टुडे आई थिंक आवर जर्नी इज कंटिन्यूइंग। सो बीच में एक पिक्चर बना, अभी दूसरा तीसरा भी बनाने वाले हैं। सो इट्स लाइक फ्रॉम एज अ म्यूजिक कंसल्टेंट टू अ को डायरेक्टर। हमारी दुआ है, हम सबकी दुआ है कि आप खूब तरक्की करें, आप इसमें बहुत आगे बढ़ें। शुक्रिया आपका बहुत हमारे से बात करने का। खुदा हाफ़िज़। Thank you. And one more thing I want to say, actually, it's very nice of you. It's very nice of the television, the channel to cover this. I take this opportunity as a chance to tell the viewers
that ना जाने तुम किधर हो, आप किधर भी हो, wherever you are, whatever circumstances you have, if you have a dream, then chase it. Because a few months ago, even I never thought that something could be made in Kuwait. I mean, a film of 40 minutes length. Most of the credit goes to the director Giri Prasad because he has most of his efforts in him. But आप जो भी करना चाहते हो, करो, कोशिश करो, chase your dream, it will happen. So that proved in our case, and we are really proud and happy that we successfully did this. We successfully did a 40 minutes film and released in Kuwait. So it's like I give a call to all other colleagues and my friends and people to just see it as a reference and take it an example and take it an inspiration, and please come out with whatever you have. If you guys come, then we are ready to. तो हम इस प्रोग्राम के आखिर तक पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे साथ ये सफ़र, इस फिल्म मेकिंग का सफ़र आपको खुशगवार गुजरा होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया और शब बख़ैर।